Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. This is Anam Sama working as visiting lecturer in Psychology Department of Institute of Southern Punjab, Multan. This is our 10th lecture of 10th week. The subject I am going to teach is Pakistan Studies, Department Psychology, Class BA Psychology, first semester. Recommended book for this subject is Pakistan Studies by Rao Zulfikar Ali. Contents to be covered in this lecture is political and constitutional phase 1988 to 1999. Firstly, we discuss about the democratic era. There are four democratic era in during the period of 1988 to 1999. The first tenure of Benazir Bhutto duration is 1982 to 1990. After Benazir Bhutto, tenure of Nawaz Sharif in 1990 to 1993. After Nawaz Sharif, again Benazir Bhutto came into the government from period 1993 to 1996, and at the end, Nawaz Sharif in 1997 to 1999. Personal information related to Benazir Bhutto. Benazir Bhutto born in 1953, 21 July in Karachi, Pakistan, daughter of Zulfikar Ali Bhutto, a political leader and former Prime Minister, and Nusrat Bhutto, former Member of Parliament and Deputy Prime Minister of Pakistan. She married in December 18 December 1987 to Asif Ali Zardari. Asif Ali Zardari is a business twist elected member of National Assembly and Senate. पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें आफ्टर इलेक्शन हेल्ड 1988 नवंबर invited to form the government became prime minister in 1988 but her government was dismissed. अब यहाँ पे हमने बात की है फर्स्टली हमने देखा है कि 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई थी उसके बाद ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड नुसरत भुट्टो की बेटी हैं अगर हम इनकी शादी की बात करें तो 1987 18 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी से इनकी शादी हुई थी पॉलिटिकल अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट जो इलेक्शन जीता था 1988 में इन्होंने विन किया था बट कुछ टाइम के बाद इनकी जो गवर्नमेंट है वो डिसमिस हो गई थी ड्यू टू illegally dismissed in August 1990, she again came to power after her party won a majority in election held in October 1993. और कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से इन्होंने गवर्नमेंट संभाल ली थी 1993 में इन्होंने इलेक्शन विन किया था her government was once again dismissed illegally in November 1996 उसके बाद दोबारा से इनकी जो गवर्नमेंट है वो डिसमिस हो गई थी 1996 में और इनके बाद अगेन से नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट संभाली थी बेनजीर भुट्टो became prime minister in the 16 November 1988 election Pakistan People Party won 94 seats in the National Assembly तो 16 नवंबर 1988 के इलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान की जो पीपल पार्टी थी उन्होंने 94 सीट्स विन की थी नेशनल असेंबली की She became the 11th Prime Minister of Pakistan on 2nd December 1988. 2nd December 1988 को ये 11th Prime Minister of Pakistan बनी थी. The Pakistan People Party government hosted the 4th SARS Summit Conference in 29-31 December to 1988 held in Islamabad. तो इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी थी होस्ट की थी फोर्थ सार्स सार्स यहाँ पे होता है सार्स से मुराद है साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉरपोरेशन समिट कॉन्फ्रेंस जो कि इन्होंने 29-31 और उसके बाद दिसंबर 1988 में ये हेल्ड हुई थी इन इस्लामाबाद में दिस कॉन्फ्रेंस वाज attended by the presidents of Bangladesh, the Maldives, Sri Lanka, Prime Minister of India and Pakistan and the kings of Bhutan and Nepal और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने मालदीव के एंड श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने उसके बाद इंडियन एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ने और भूटान एंड नेपाल के किंग्स ने एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान एंड इंडिया फाइनलाइज डिफरेंट एग्रीमेंट्स और उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद ये हुआ था कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने डिफरेंट एग्रीमेंट पे
उस चीज को फाइनल किया था और उसको एक्सेप्ट किया था। Next is presidential election about Benazir Bhutto. According to the deal between Ghulam Ishaq Khan and Benazir Bhutto, Pakistan People Party voted from Ghulam Ishaq Khan. अब क्या हुआ था कि उनकी जो डील हुई थी गुलाम इसहाक खान की और बेनजीर भुट्टो की, उसके बलबूते पे पाकिस्तान की जो पीपल पार्टी थी उन्होंने गुलाम इसहाक खान को वोट दिया था। गुलाम इसहाक खान was also the consensus candidate to ऑफ इस्लामी जमहूरी इतिहाद के कैंडिडेट भी थे। 4 कैंडिडेट टुक पार्ट इन इलेक्शंस में 4 कैंडिडेट टोटल थे, विद गुलाम इसहाक खान विनिंग एंड सिक्योरिंग द हाईएस्ट 08 वोट्स अगेंस्ट नवाबजादा नसरुल्ला खान ऑन 12 दिसंबर 1988। तो यहाँ पे ये हुआ था, जो गुलाम इसहाक खान है उन्होंने विन किया था इलेक्शन 608 वोट से, और ये इलेक्शन जो उन्होंने विन किया था ये अगेंस्ट था नवाबजादा नसरुल्ला खान का, और ये इलेक्शन हेल्ड हुआ था 12 दिसंबर 1988 में। Important events during Bhutto reign. Important events during her government are as follows. First event is Pakistan rejoined the Commonwealth. When we talk about Pakistan rejoined the Commonwealth, we can see that after the separation from Commonwealth in 1972, Pakistan rejoined it in 1989. अब जब 1972 में उन्होंने क्या किया था, सेपरेशन हो गई थी, तो पाकिस्तान ने रीज्वाइन किया था इस कॉमनवेल्थ को इन 1989 में। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल वर्क्स प्रोग्राम। द गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर भुट्टो has launched the People Works program for the development and social welfare of the country. तो यहाँ पे ये हुआ था कि उन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट ब्यूरो। डिपार्टमेंट ऑफ प्लेसमेंट ब्यूरो वाज सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक। तो उन्होंने क्या किया था, एक सेटअप किया था डिपार्टमेंट प्लेसमेंट ब्यूरो के नेम से, और उसमें ये था कि उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी। उसके अलावा थाउजेंड ऑफ पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट थ्रू इट। काफी सारे लोग, थाउजेंड ऑफ पीपल ने इसके जरिए से एम्प्लॉयमेंट हासिल की थी, क्योंकि वहां तक उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट भी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेजेस में काफी सारी हमें क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई एग्जैक्ट गवर्नमेंट नहीं बन सकी थी, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो भी इतनी कोई खास नहीं थी उस टाइम पीरियड पे, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने एक ऐसा प्लेसमेंट ब्यूरो डिपार्टमेंट बनाया था जिसके जरिए से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली थी, और उनका जो पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज हुआ था। लास्ट पॉइंट इज रिलेशन विद इंडिया। बेनजीर भुट्टो हैज अडॉप्टेड a no confrontation policy with India. When Rajiv Gandhi visited Pakistan to participate in the fourth SARS conferences, Benazir Bhutto joined hand for establishing good relation with him. तो बेनजीर ने क्या किया था, इंडिया के साथ अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो उन्हें अच्छा कर दिया था। Next topic is Benazir Bhutto government dismissed. The Ghulam Isa Khan dismisses Benazir Bhutto government. तो इन्होंने क्या किया था, गुलाम इसा खान ने बेनजीर की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया था ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, गुलाम मुस्तफा जतोई वाज नॉमिनेटेड एज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। द सेवंथ इलेक्शन फॉर द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली वर हेल्ड ऑन अक्टूबर 24 अक्टूबर 1999 को 1990 को सेवंथ इलेक्शन जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के थे वो फाइनल हुए थे, और उसके बाद गुलाम मुस्तफा जो जतोई थे एज ए नॉमिनेट हुए थे प्राइम मिनिस्टर, और जो इसके बाद जो जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए थे वो 29 अक्टूबर 1990 में हुए थे। General election 1990, Islamia Jamhuriya Ittihad won the election, capturing 106 seats against Pakistan People's Party, 45 seats in the National Assembly. Nawaz Sharif, the leader of the IGI, emerged as the national leader, winning seat in all provinces. तो इस टाइम पीरियड में 99 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने काफी सारी सीट्स विन की थी, और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। Mia Mohammad Nawaz Sharif, the ex-Chief Minister of Punjab, was elected as the 12th Prime Minister on 6 November 1990 को।
11th हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो थी। फिर उसके बाद जो टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन था गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने थे 6 नवंबर 1990 को। Important steps taken by Nawaz Sharif government. Some important steps which is taken by Nawaz Sharif governments are as under. First step is privatization commission. The government constitute privatization commission in 1991. तो इन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट कमीशन का कयाम हुआ था 1991 में हुआ था, उसमें ये था कि सरकारी बैंकों और मालियाती अदारों में इस्लाहातें की गई थी। काफी सारे उसमें जो थी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया गया था। और उसके अलावा प्राइवेट शोबे में बैंकों का जो हुआ था, काफी सारे बैंक कायम किए गए थे और उनकी हौसला अफजाई की गई थी। उसके अलावा कुछ बैंक और दीगर इदारे निजकारी कमीशन के जरिए फरोख्त कर दिए गए थे, जिससे कौमी खजाने पर काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें सामने देखने को मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोविंसेस। तो यहाँ पे ये था कि सूबों के दरमियान जो पानी की तकसीम का मुआहदा तय हुआ था, उसमें ये था कि पाकिस्तान के जो चारों सूबों के दरमियान दरिया सिंध के पानी की तकसीम पर तनाज़ा चल रहा था। हुकूमत की कोशिशों से सूबों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिससे पानी की जो ये तकसीम का एक तनाज़ा चल रहा था, वो खत्म हो गया था, डिसमिस कर दिया था उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल एड फॉर द पुअर पीपल। और इसमें ये था कि जो गरीब लोगों के लिए था, उनके फाइनेंशियल एड के लिए एक पूरा एक प्रॉपर निज़ाम कायम किया गया था। और उसमें ये कहा था कि जितने भी ये लोग हैं, गरीब गुरबा है, उनके लिए एक बैतुल माल का कयाम किया जाए, जिसके जरिए से उन्हें माली इमदाद फ्राहम की जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल स्कीम। तो इसमें ये था नेशनल स्कीम में कि नवाज शरीफ की हुकूमत में काफ़ी सारे इन्होंने फलाह बहबूद के लिए जो जितने भी तामीराती काम किए थे, उसके अलावा जितनी भी इन्होंने स्कीम्स बनाई थी, मोटरवे प्रोजेक्ट था, उसके अलावा येलो कैप स्कीम के जरिए से इन्होंने काफ़ी सारे मंसूबों को स्टार्ट किया था, जो कि एंड में सक्सेसफुल भी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लक शेर मजारी एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उसके बाद ये था द आईजीआई's परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 2 year वाज बेटर देन एनी प्रीवियस पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। तो ये जो 2 years का इनका था, ये जितनी भी पहले इनकी गवर्नमेंट आ चुकी थी उनसे काफी ज्यादा बेहतर था। बट अनफॉर्चुनेटली दिस गवर्नमेंट आल्सो कुड नॉट कंप्लीट द टर्म। लेकिन ये हुआ था कि ये जो गवर्नमेंट आई थी, ये अपनी टर्म्स पूरी नहीं कर सकी थी, यानी कि जितना इनका ड्यूरेशन था ये कंप्लीट नहीं कर सकी थी। And the president dismissed the government on 18 अप्रैल 1993 को गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था ऑन करप्शन चार्जेस पे। Afterwards, Black Shir Mazari was nominated as a caretaker of Prime Minister. Next point is Moin Qureshi as a caretaker of Prime Minister. But the interference of Chief of Army Staff Nawaz Sharif voluntarily decided to step down and resign. President of Pakistan Ghulam Ishaq Khan also resigned. तो यहाँ पे क्या किया था, नवाज शरीफ ने भी रिजाइन कर दिया था और आफ्टर द गुलाम इसाक खान ने भी रिजाइन कर दिया था। मोइन कुरैशी बिकम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड चेयरमैन सेनेट वसीम साजिद बिकम केयर टेकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर ये हुआ था कि जो मोइन कुरैशी हैं वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे और वसीम साजिद एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। नेक्स्ट इज जनरल इलेक्शन 1993 general election were arranged under a caretaker administration headed by Moin Qureshi in October 1993. The election once again produced a divided mandate. Benazir Bhutto established a coalition government at the center in October 1993. Again, Benazir Bhutto became a prime minister of Pakistan. The election were boycotted by the MQM. No party emerged with an absolutely majority in the election. As a result, the Pakistan People Party formed the new government with the help of alliances. Benazir Bhutto took part as a prime minister on October 1993. She began her second term as a more secure prime minister than was the case when she assumed the office for the first time in 1988. तो 1993 में ये अगेन से इन्होंने सेकंड टाइम पे चार्ज संभाल लिया था। शी नॉमिनेटेड फारूक अहमद लिगारी एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान।
तो इन्होंने नॉमिनेट किया था फरूक अहमद लिगारी को एज अ प्रेसिडेंट. शी अपॉइंटेड सजाद अली शाह द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड रिप्लेस द हेड ऑफ द आईसीआई ऑफ द आईबीआई. तो इन्होंने क्या किया था, जो सज्जाद अली हैं इन्हें एज अ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट किया था और इन्होंने आईबी को आईएसआई के साथ रिप्लेस कर दिया था. Here is some reforms of Benazir Bhutto. Benazir Bhutto during her second regime are as follows. During Benazir Bhutto second term, construction of Karachi flyover bridge. तो इन्होंने क्या किया था, जब इनका सेकंड टाइम पे इन्होंने गवर्नमेंट जो इनका दौरे हुकूमत था सेकंड, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, कराची में फ्लाईओवर ब्रिज एक कंस्ट्रक्शन की थी. नेक्स्ट पॉइंट इज लाहौर बाईपास वाज स्टार्टेड. तो इन्होंने लाहौर में बाईपास को भी स्टार्ट किया था. सेटअप किसान बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर्स. तो इन्होंने क्या किया था, किसानों के लिए एक बैंक का सेटअप किया था ताकि वो जितने भी किसान हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल एंड हेल्थ पॉलिसीज वर फार्म फॉर वुमेन. तो इन्होंने वुमेन के लिए सोशल और हेल्थ पॉलिसीज का भी एस्टेब्लिशमेंट की थी. Women policy stations and courts were set up for providing legal facilities to the lower classes. Last point is the government launched the 8th five-year plan for rapid development and prosperity of the country. The dismal of the government of Benazir Bhutto. Differences on different matters was developed between President Mr. Farooq Ahmad Lighari and Prime Minister Benazir Bhutto. तो उस टाइम पे ये था कि बेनजीर भुट्टो और मिस्टर फारूक अहमद लिगारी के दरमियान काफी सारे डिफरेंसेस आ गए थे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर फारूक अहमद लिगारी dismissed the government of Benazir Bhutto in नवंबर 1996. तो 1996 में फारूक अहमद लिगारी ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था. ए फॉर्मर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर मलिक मिराज खालिद वाज नॉमिनेटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द इंटीरियम पीरियड. तो उसके बाद ये हुआ था, जब इन्होंने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था तो मलिक मिराज खालिद नॉमिनेट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर. एट द सेम टाइम अनाउंस देयर डेट फॉर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन. तो उसी टाइम पे इन्होंने नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की डेट भी अनाउंस की थी. Next general election 1997 were held on 3rd February 1997. In this election, Pakistan Muslim League got the absolute majority seat in National Assembly. तो इस टाइम पीरियड में ये हुआ था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पार्टी थी, इन्होंने काफी सारी सीट्स विन की थी इन नेशनल असेंबली. वाइल इट्स कैंडिडेट आल्सो कैप्चर्ड 2 सीट इन कराची. तो इन्होंने 2 कराची में भी सीट्स को विन किया था. न्यू पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ हेडेड बाय इमरान खान इंटर टू द इलेक्शन. तो उस टाइम पीरियड में इमरान खान भी इलेक्शन में इंटर हुए थे बट डिड नॉट विन अ सिंगल सीट इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. लेकिन उस टाइम पीरियड में इमरान खान कोई भी सिंगल सीट भी विन नहीं कर सके थे, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी एंड नेशनल असेंबलीज में भी. देन मोहम्मद नवाज शरीफ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टर्म. क्योंकि प्राइम जो जितनी भी सीट्स थी वो मोहम्मद नवाज शरीफ ने विन की थी, तो ये सेकंड टाइम पे प्राइम मिनिस्टर एज अपॉइंट हुए थे और ये इनका दूसरा दौरे हुकूमत था. Farooq Khan Ligari also resigned from the presidency in 2nd December 1997 because Chairman Senate Wasim Sajid became the caretaker president of Pakistan at that time. Next point is presidential election. The presidential election was held in December 1997. Justice Rafiq Tarar was elected as a president against Aftab Shahaban Mirani of People Party. Next point is reforms during Nawaz Sharif government. There are 2 reforms during Nawaz Sharif government. First is agriculture policy and second is education policy. Agriculture policy. Nawaz Sharif government announced an improved agriculture policy in 1998. 10 crore rupees were fixed for this field. तो इसमें ये हुआ था कि नवाज शरीफ ने अनाउंस की थी
एग्रीकल्चर पॉलिसीज को इन 1998 में, और इसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपीस को फिक्स कर दिया था एग्रीकल्चर पॉलिसीज के लिए। जैसे कि पहले भी हमने देखा रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर पॉलिसीज पे काफी काम हुआ था, लाइक किसानों को लोन भी दिया गया था, उसके अलावा बैंक्स की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसी तरह से जब नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था तो इन्होंने भी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई थी, और उसमें इन्होंने कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट रख दी गई थी कि उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन पॉलिसी। Government announced a new educational policy aimed at opening many new academic institutions. अब देखें एजुकेशनल पॉलिसीज की बात करें तो प्रीवियस रिफॉर्म्स में भी हमने ये बात की थी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन थे या जितने भी रिफॉर्म्स आई थी एजुकेशन पे भी काफी काम किया गया था। लाइक अरबिक की एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था। उसके अलावा हमने देखा था काफी सारे न्यू जो कॉलेजेस थे वो भी इस्टेब्लिश हुए थे, न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश हुए थे। तो इसी तरह से जब नवाज शरीफ के गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने भी एजुकेशन पे काफी काम किया था, और इन्होंने काफी सारे न्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी ओपन किए थे। इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन नवाज शरीफ गवर्नमेंट, there are some important events of his second term are as follows. First is right of vote to Pakistani abroad, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और वो अब्रॉड में रहते हैं तो उन्हें इस चीज का हक दिया जाए कि वो वोट दे सके, यानी कि ताकि उनका अपने पाकिस्तान को लेके उनका इस चीज में दिलचस्पी पैदा हो सके। सेंसस ऑफ 1998, जब हम 1998 की मरदमशुमारी की बात करते हैं तो इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत ने 1998 की मरदमशुमारी करवाई, जिसके तहत मुल्क की जो टोटल आबादी थी वो 13 करोड़ के से राउंड 13 करोड़ के राउंड अबाउट थी। नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक ब्लास्ट। तो एटॉमिक ब्लास्ट में ये था कि पाकिस्तान यानी कि भारत के जो एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को नवाज शरीफ की हुकूमत ने एटमी धमाके करके भारत की बर्तरी का ख्वाब खाक में मिला दिया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज कारगिल अटैक। तो कारगिल अटैक की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कारगिल अटैक। तो इसमें ये था कि जितना भी उनका जो कारगिल पर लश्कर कशी की थी, यानी कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पर लश्कर कशी कर दी। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के कहने पर मजबूरन पाकिस्तान अफवाज को मकबूजा इलाकों से वापस बुलाना पड़ा था एट दैट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज पे ऑफ लोन एंड अडॉन द कंट्री स्कीम। उसमें ये था कि जितने भी हमारे जो ये है कर्जा उतारो मुल्क संवारो की जो मुहिम चली थी, उसमें ये था कि पाकिस्तान की जो इक्तसादी सूरत हाल थी बेहतर ना होने के बाद हुकूमत ने बजट के लिए IMF से जो कर्जा लिया था, तो उसके बाद ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौर में कर्ज उतारो मुल्क संवारो की एक मुहिम चलाई थी। उसमें इन्होंने यही कहा था तकरीर में, गैर मुल्की कर्जे उतारने के लिए कौन से कर्जे हसना की अपील की जाए, और उसके अलावा मियां नवाज शरीफ की स्कीम पर अवाम ने लब्बैक भी कहा था। एंड 1999 जून 1999 तक इस के करीब तकरीबन 17 अरब रुपए भी कलेक्ट कर लिया गया था। Next topic is constitutional amendments. Firstly, we see 13 amendment. तो उसमें ये था 13 amendment की जब हम बात करते हैं, the National Assembly unanimously adopted the Constitution Bill, the 13 Amendment in April 1, 1997 by a 2/3 majority. यानी कि फर्स्ट जो 13 अमेंडमेंट था ये 1 अप्रैल 1997 को ये अडॉप्ट किया गया था बाय द 2/3 मेजोरिटी। और उसमें ये था अमेंडमेंट में, through the 13th amendment the controversial 8th amendment was replaced। जो 8 amendment था वो रिप्लेस किया गया था, and thereby the president was divested of the many discretionary power in order to restore the supremacy of the parliament। यानी कि इसमें ये था मियां नवाज शरीफ ने दूसरी मर्तबा इक़्तिदार में आते ही 1973 के आइन की शर्त 58 टू बी के 13वीं आईनी तरमीम के जरिए खत्म करके सदर के असम्बली तोड़ने के इख्तियार को खत्म कर दिया, क्योंकि कुछ सियासी हलकों ने इसको नापसंद भी किया था, जिससे सियासी तनाव पैदा हो गया था।
Next is 14th Amendment. The 14th Amendment to the Constitution of Pakistan was an amendment to the Constitution of Pakistan passed in July 1st, 1997. और जो सेकंड ये 14 अमेंडमेंट था ये 1 जुलाई 1997 को पास हुआ था ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उस टाइम पीरियड पे ये पास हुआ था लीडर ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी। लास्ट इज 15 अमेंडमेंट। तो इसमें ये था द 15 अमेंडमेंट बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज passed by नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन 28 अगस्त 1998। तो ये जो अमेंडमेंट पास हुआ था ये 28 अगस्त 1998 में हुआ था। इट वाज देन मूव टू द सेनेट। ये मूव हो गया था सेनेट में वेयर इट वाज नेवर पास, जहां पे ये पास नहीं हुआ था। देखिए पहले क्या हुआ था, जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे वो पास होते चले गए थे, लेकिन जब 15 अमेंडमेंट सेनेट में गया तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था और ये पास नहीं हुआ था। द प्रपोज्ड अमेंडमेंट इंक्लूड एडिशन ऑफ अ new article to be in the constitution and amendment in article 239 of the constitution of Pakistan. It also sought to impose sharia law of a supreme law in Pakistan in the light of objective resolution of Pakistan, in addition to the Quran and Sunnah as in the constitution of Pakistan till today. Nuclear test on May 28, 1998, पाकिस्तान become a nuclear power। तो हम यहाँ पे देखते हैं 28 मई 1998 को 1998 को पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन गया था और 7th न्यूक्लियर पावर था when it successfully carried out 5 nuclear power tests in Shikagi in the province of Balochistan। This was in direct response to 5 nuclear explosions by India just 2 weeks earlier. Widely criticized by the international community, Pakistan maintains that its nuclear program is for self-defense as deterrence against nuclear India। यहाँ पे ये था कि 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार जब संभाला था तो इन्होंने कहा एटमी साइंस हमारी तरक्की और दफा के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर हम एटमी तमन्नाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि हम अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। 1992 में कराची में पाकिस्तान का पहला जो एटमी बिजली घर कायम किया गया था, मगर ये मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनतों की तरक्की के लिए मजीद एटमी तमन्नाई का हसूल भी ज़रूरी था। देन 1974 की अगर हम बात करें तो राजस्थान के सहरा में पहला हमारा क्या था, एटमी धमाका हुआ था, तो वो एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बढ़ गया था। उसके बाद हम देखते हैं 1984 में जो ऐलान हुआ था, पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफज़दा करके तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। नेक्स्ट 1989 में डॉक्टर कदीर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत भी हासिल कर ली है। देन 1998 में भारत में भारतीय जितना पार्टी बरसरा इक़्तिदार आए तो इसने भारत की बढ़तरी का सिक्का जमाने के लिए 11 मई 1998 को पोखरान यानी कि राजस्थान में 5 एटमी धमाके करके खिते में अपनी एटमी बढ़तरी कायम करने की कोशिश कर रही थी। देन 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चावी पहाड़ में भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके किए। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलमी इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया। जो ही चावी के पहाड़ों में अल्लाह अकबर का नारा गूंजा, पाकिस्तानी कौम का सर फखर से बुलंद हो गया और दुश्मन का गुरूर खाक में मिल गया। 28 मई को यौम तकदीर का नाम दिया गया। कौम हर साल ये दिन पूरे वकार और जोशो खरोश से मनाती है। So, termination of PM on October 12, 1999, the Chief of Army Staff General Pervez Musharraf was abroad on foreign tour। तो ये हुआ था कि 12 अक्टूबर 1999 को चीफ जो आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ वो अब्रोड गए थे विजिट पे। एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हेडेड द गवर्नमेंट। तो उस टाइम पीरियड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट का जो दौरे हुकूमत था वो उन्होंने संभाला था। द कोप इमीडिएटली follow the premier attempt to replace the army chief while he was on a tour to Sri Lanka। तो उस टाइम पे ये श्रीलंका के टूर पे थे। After 2 days of chilling uncertainty, Chief of Army Staff General Pervez Musharraf assumed the title of Chief Executive। तो इन्होंने Chief Executive का टाइटल assume किया था at that time। He was sent
sentenced to imprisonment and was declared unfit for any public post by a special court on the intervention of Saudi government. He was sent to on exile to Saudi Arabia. So this is our today lecture. Thank you so much. If you have any query regarding this lecture, you may ask during our LM system. Stay safe. Allah Hafiz.